ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ملیر جرنلسٹ پینل کا دوسرا اجلاس صحافتی امور اور مستقبل کی حکمت عملی پر اہم پیش رفت۔ رپورٹ حاکم علی دل، روزنامہ حمایتی نیوز، کراچی ضلع ملیر جرنلسٹ پینل کا دوسرا اہم اجلاس علی بلیری کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں ضلع ملیر سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اجلاس میں صحافتی امور، صحافی برادری کو درپیش مسائل، باہمی اتحاد، پیشہ ورانہ ذمہ داریوں اور تنظیمی معاملات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس کے دوران شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ صحافیوں کے حقوق کے تحفظ، آزادی صحافت کے فروغ اور پیشہ ورانہ وقار کو برقرار رکھنے کے لیے مل جل کر جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ اس موقع پہ تنظیم کو مزید فعال و مضبوط بنانے، صحافیوں کی فلاح و بہبود و مستقبل کے لاہے عمل سے متعلق اہم تجاویز بھی زیر بحث آئیں، جن پہ مثبت پیش رفت ہوئی۔ صدر اجلاس علی بلیری نے اپنے خطاب میں کہا کہ صحافی معاشرے کی آنکھ اور آواز ہوتے ہیں، اس لیے صحافی برادری کے اتحاد و باہمی تعاون کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔ انہوں نے اس عزم کا ادا کیا کہ ملیر جرنلسٹ پینل صحافیوں کے جائز حقوق اور مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرے گا۔ اجلاس کے اختتام پہ تمام شرکاء نے ملیر جرنلسٹ پینل کے پلیٹ فارم کو مزید مضبوط و مؤثر بنانے کے عزم کا ادا کیا۔ اس بات پہ اتفاق کیا کہ آئندہ بھی ایسے مشاورتی اجلاس باقاعدگی سے منعقد کیے جائیں گے تاکہ صحافی برادری کے مسائل کو مشترکہ حکمت عملی کے ذریعے حل کیا جا سکے۔ اجلاس کے کامیاب بنانے میں پوری صحافی برادری نے بھرپور شرکت کی اور ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس اتحاد کو خوش آئند قرار دیا۔ رپورٹ حاکم علی دل، روزنامہ حمایتی نیوز۔ بات یہ ہے کہ آپ اچھے صحافی ہو، ہم کسی کو ریموو نہیں کریں گے، اپنا محاسبہ آپ خود کریں۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، آنے والے دنوں میں ہم الیکشن کہہ رہا ہوں، حلف برداری کی ایک تقریب منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں جو ہمارے ذمہ داران منتخب ہوئے تھے ان کے ہم باقاعدہ حلف برداری کی تقریب منعقد کریں گے، جس میں سیاسی لوگ، جس میں سماجی لوگ، وکلا حضرات، ڈاکٹر جو ہمارے دوست ہیں وہ، اور دیگر سیاسی و سماجی لوگوں کی شرکت ہوگی۔ لگنا چاہیے کہ حلف برداری کی تقریب ہے۔ اس کے لیے ہم اس پروگرام کے بعد ساتھیوں سے رائے لیں گے کہ آیا وہ کس طرح کی جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تیسرا ایجنڈا کیا تھا سر؟ معاملات جو روزمرہ کے ان کے ذاتی جو اچھا، ایک اور چیز ہے، پر کس طریقے سے بنائی جاتی ہے، خبر کا مفہوم کیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ ساری چیزیں میں اس کو بتاؤں گا۔ لیکن کوئی سیکھنے کے لیے تو آئے نا، کوئی آئے نا بھائی، خبر کو کیسے بنایا جائے۔ ایک خبر ہوتی ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک کہانی ہوتی ہے، تو ہم سمجھ نہیں پاتے یہ کہانی ہے، واقعہ، یہ خبر ہے۔ خبر تو ہمیں نظر نہیں آتی، واقعہ بیان کر دیتے ہیں۔ خبر کو بنانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ بہرحال آپس کے اندر کے اختلافات کو بالکل ختم کریں بھائی، نہیں ہونا چاہیے۔ صحافی کا بھائی ہے، جس طریقے سے اور لوگ بھائی ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہم بھی بھائی ہیں۔ اور جس طرح چیئرمین صاحب نے یہ بات کی کہ ہمارے پینل کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تفریق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے ساتھ 4 بندے بھی ہوں گے نا اس پینل پر، ان کو مثبت پیغام دینے کے ہم یہ بات کریں، میں اس بات سے ایگری نہیں ہوں۔ یہ پیغام ہمارا مثبت جانا چاہیے، کیونکہ ہم صحافی ہیں۔ اگر صحافی کے آپس میں معاملات ہوتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، گھر کے اندر بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، پھر آخر میں دسترخوان ایک ہی ہوتا ہے۔ تو میں بذات خود اس چیز کو ڈینائی کرتا ہوں، نہیں ہونا چاہیے۔ صرف چیئرمین صاحب کا مقصد یا نائب صدر کا مقصد یہی ہے کہ یہ چیزیں اپنے اندر سے ہم نے خود ختم کرنی، بجائے گروپ سے کسی کو ریموو کیا جائے یا وہ خود لیفٹ ہو جائے۔ ایسا کوئی اقدام نہ کریں گے، نہ ہم کرنے دیں گے۔ ہم کسی ساتھی کو کھونا نہیں چاہتے، ہمارے لیے ایک ایک ساتھی قیمتی ہے، ہم سمجھائیں گے۔ ملیر جرنلسٹ پینل کا عہدیداران اور ساتھیوں نے شرکت کی، اور اس پہ چند گزارشات تھیں جو ساتھیوں سے ہم نے شیئر کی۔ معاشرے کے اندر برائیاں تو ہوتی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ان برائیوں کو ہائی لائٹ کریں، اور ہائی لائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان برائیوں کو حل کے لیے مثبت تجاویز کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔
असल में देखा गया है कि मलीर जर्नलिस्ट पैनल लोगों के जहन में ये चीज़ होगी कि ये सिर्फ एक पैनल ही है, इसमें काम करने वाले लोग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस पैनल के अंदर तमाम सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं, कैमरामैन मौजूद हैं, यानी हर इदारे के लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक तवाना आवाज़ है, मलीर के हवाले से अगर बात की जाए एक तवाना आवाज़ है। और इंशाल्लाह जो भी मसाइल होंगे, जो सहाफ़ियों के साथ मसाइल हैं वो भी हम हाईलाइट करेंगे, और जो माशरे के मसाइल इंशाल्लाह उनको भी हम हाईलाइट करेंगे। और दूसरी इसमें आखिरी ये बात ऐड करना चाहूँगा कि ये दूसरा इजलास आपने बड़ा दिल करना है, बड़े मामलात देखने, छोटी छोटी बात में नहीं यार वो मेरी बात नहीं सुनता है, यार उसका वो नहीं है, यार मेरे वहाँ से पैसे नहीं लगते यार तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं होता। आपस में ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाएंगे सारे मामलात हमारे सीधे हो जाएंगे। सदर मुख्तलिफ इदारों से जिनका ताल्लुक है उनको वेलकम करता हूँ आज ब्लेरी हाउस के एक मकामी होटल में। आज का जो इजलास था उसका बुलाने का एक मेन मकसद था, उस मकसद को हमने किस तरीके से पूरा करना है। ज़ाहिर है किसी न किसी के मामलात होते हैं, नहीं पहुंच सके साथी, कोई दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी के साथ कोई ना कोई मसला होता है। लेकिन इस इजलास का एक मकसद है कि आने वाले दिनों में हमने मलीर जर्नलिस्ट पैनल को कैसे लेके चलना है। बात से भी थोड़ी सी चपलकश हो जाती है। तो जिस तरह इफ्तिखार भाई ने बात की कि ग्रुप के अंदर ऐसे चीज़ें जो हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं हो रही हैं, कोई बात नहीं, होने दें। हम किसी को ब्लेम नहीं करते, किसी पे उंगली नहीं उठाते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा काम है जोड़ना, हमारा काम है समझाना। समझाएंगे, बाज नहीं आया फिर समझाएंगे। जब हमने इस पैनल की बुनियाद रखी, ये सोच के रखी थी कि नए आने वाले साथियों को सीखने का मौका मिलेगा, उनको हम सिखाएंगे। आवाज़ जो है हम सामने लाते हैं, आला इदारों तक पहुंचाते हैं, जो मसले मसाइल होते हैं। ये जो बहुत खुशी इत्तेहाद होना चाहिए। सहाफ़त की इज़्ज़त भी है और इसमें सहाफ़त की भी इज़्ज़त रहेगी। अगर सहाफ़त नहीं रहेगी, उसकी जो है हर जगह पे बेइज्जती होती रहेगी, ज़लील व ख्वार होता रहेगा। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आपको पता है हर किसी के साथ कहीं ना कहीं कोई मसला होता है। जहाँ भी जाते हैं अगर किसी के अगेंस्ट आप जाओगे, हक की बात करोगे, सच की बात करोगे, तो आपके साथ बहुत सारे मामला। मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट है जो ये चाह रहे हैं कि हमारा ये जो मलीर जर्नलिस्ट पैनल है ये टूटे, वो उसके अंदर किरदार अदा कर भी रहे हैं और हमें नजर भी आ रहा है। लेकिन सबसे पहले उस्ताद जी हमने ये करना है कि आपस में बर्दाश्त रखनी है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। क्योंकि हमारा जो मुकाबला है ना, जहाँ पे क्रिमिनल टाइप की माफिया है उनके अलावा हमारे अपने लोगों के साथ भी मुकाबला है। तो हमने इन्होंने कुछ आज तक कर नहीं सके, हम ये कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के बाजू बने और मजबूती करें और एक दूसरे को करके कुछ दिखाएं। ऐसा ना हो कि मैं कभी किसी की कॉल ना उठा सकूं, सदर साहब ना उठा सकें, जनरल सेक्रेटरी ना उठा सकें, नायब सदर साहब ना उठा, या आप में से किसी को कॉल, नाराजगी का इजहार नहीं करना है अफसर जी, उसको थोड़ा मौका देना है ताकि वो आपसे बात कर सके, यार मैं फलां जगह फंसा हुआ था, माजरत था। एकदम फैसले नहीं करने, फैसला एक तरतीब से करना है कि तारक भाई से भाई मुझे ये मसला है, उसका पूरा एक सिस्टम बनाएंगे। हमारा क्लेवर गिरेगा, बढ़ेगा नहीं। पहले तो इस चीज को समझा जाए कि ग्रुप के अंदर हम किसी को नहीं निकालेंगे। एक दो साथियों की राय तो है निकालेंगे, लेकिन मैं बेहैसियत सदर मैं कंडेम करता हूं, मैं नहीं निकालूंगा। मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बार बार समझाऊंगा। मैं ग्रुप में बहस का कायल नहीं हूं। बहस वो लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं, जो अपनी इफादियत बताना चाहते हैं, जो ये बागुजार देखें हर चीज के एक सिस्टम अल्लाह पाक। यार सीधी सी बात है, आप सब हाजिर दिमाग लोग हो, हाजिर दिमाग साफी होता है, हाजिर दिमाग साफी होता है ना। क्यों? किसी से क्वेश्चन करना है, आपने सवाल करना है, वो जवाब देगा। मजा तब आता है जब करो, आपकी ये जिम्मेदारी है, नायब सदर आपकी ये, जनरल सेक्रेटरी आपकी ये जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियों के हवाले से काम को तकसीम किया जाता है। आने वाले दिनों में आपको मैं बड़ी बात नहीं कर चीज़ों को, हमें भत्ते की सहाफत नहीं चाहिए, हमें दो नंबरी नहीं चाहिए।
मसहब का मुहासबा करो। आप अच्छे इदारों से आपका ताल्लुक है, आप एक अच्छे सहाफ़ी हो। एक अच्छा सहाफ़ी तभी परवान चढ़ता है जब उसके कलम की नोक के नीचे सच को लिखा जाए, ना कि हमारा ताल्लुक बना हुआ है मावा, गुटखा, चरस, क्रिस्टल। किसी साथी नाम नहीं लूँगा, एक चीज़ शेयर करनी, जब वो चीज़ शेयर की उससे मैं इस्लामाबाद में था उस वक्त, मैंने पूरे कॉलम लिख लिए उसके ऊपर, कॉलम डाल दिए सोशल मीडिया के ऊपर। कई जगहों से मुझे काले आना शुरू हो गए, बोला यार ये ऐसा नहीं है, ऐसे ये सबूत है उसके। फिर मैंने ग्रुप में ये बात की, मैंने कहा यार ये किसने खबर शेयर की थी, पहले आप देखो तो सही, मवाजना तो करो। सहाफ़ी का काम क्या है? कॉपी पेस्ट करना। सहाफ़ी का काम क्या है? इससे सुनी उससे सुनी ये बात करनी। सहाफ़ी का काम है तहकीक करना, सही मानों में खबर की हकीकत को समझ सकते हैं। चंद सहाफ़ी उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। फिर आप सहाफ़ी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं। मैंने पहले कहा था एक दिन का सहाफ़ी मेरे लिए काबिल एहतराम है, उसके साथ जुड़ गया ना वो सहाफ़ी है। ज़रूरी नहीं होता कि एक सहाफ़ी, आजकल की बात कर रहा हूँ, वरना ज़रूरी होता है, तालीम ज़रूरी है, तालीम ज़रूरी है, डिग्रियां ज़रूरी हैं। मैं ये डिनाई तो नहीं कर रहा ना कि डिग्रियां नहीं करनी चाहिए, सहाफ़त की डिग्री नहीं होनी चाहिए, नहीं। ऐसे सहाफ़ी भी हमारे पास, हमारे अंदर मौजूद हैं जो बाकायदा कोर्स करके डिग्रियां ले करके इस प्लेटफॉर्म पे अपना काम, अपना लोहा मनवा रहे हैं। लेकिन अमली तौर पर जद्दोजहद करना, ये हम माशरे के लिए उसको, माशरे के मसाइल को हल करने के लिए हम काम कर रहे हैं। आप तफरीक डालनी है तो आप उनको डालें, जराइम पेशा नासर के अंदर डालें ताकि लग पता जाए, बाकी साथियों के अंदर तफरीक ना डालें। इंशाअल्लाह हम तमाम साथी शीशा पिलाई हुई दीवार साबित होंगे। अगर मैं अभी भी कहता हूँ इस मीटिंग की तवज्जो से, दूसरे इजलास उसकी तवज्जो से, अभी भी मैं अपने समेत, गुलावान समेत भाई और चेयरमैन साहब समेत क्लियर बोलता हूँ, जिसने जाना है बेशक जा सकता है। हमारी कोई ज़ातियात नहीं, कोई तनख्वाह का किरदार अदा करेंगे, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। चाहे आधी रात को देखें, अभी मैंने आज एक ग्रुप में फैसल मेमन भाई ने एक मुझे पर्सनल एक भेजी थी, एक सहाफ़ी को वहाँ तशद्दुद किया पुलिस वालों ने, उनके साथ जो मामलात हैं, जो आज का ये कल या गुज़श्ता रात का ये वाक़या हुआ, उसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। नहीं होना चाहिए। पुलिस वाले भी दूसरी मखलूक नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। गलत फहमी की बुनियाद पे शायद नहीं समझा होगा, उसके माथे पे तो ये नहीं लिखा कि वो सहाफ़ी है, आएगा पुलिस वाला तलाशी भी लेगा। देखे भाई, इदारे कोई भी हों हमारे लिए काबिल एहतराम है, इदारे कोई भी हों, चाहे वो पुलिस है, रेंजर्स के इदारे हैं, दीगर इदारे हमारे लिए सारे काबिल एहतराम हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इदारे हैं। अगर आपको कोई इदारा रोकता है, आपने कार्ड नहीं दिखाना कि मैं सहाफ़ी हूँ, नहीं, आपने कार्ड दिखाएं। उनका क्या काम है? तलाशी लेंगे ना, अपना तलाशी ली, गाड़ी की तलाशी ली, बाइक की तलाशी, अल्लाह हाफिज़। कोई ज़्यादती करे, कोई पुलिस वाला भाई ज़्यादती करे तारुफ करवाने के बावजूद भी, तो फिर आपने उसके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, उसकी शक्ल सूरत देख लें, थाना देख लें, बाकी काम हमारा है। तो हम ना ज़्यादती करेंगे, ना हम अपने साथ ज़्यादती बर्दाश्त करने देंगे। तो ये आज का मौजू था, आज के मामलात थे, और ऑफ कैमरा बात भी होगी, तारुफ भी होगा। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाक़यात यकीन के साथ।